Okay, good morning everyone. So we were doing exercise 7.3. We have already finished in question number 3. Few questions I have solved on the board and few were given to you as homework. So now we'll continue further with question number 4. In question, beta screen is very visible. Check your network. Okay. Ma'am, we are on question number 6. So there is a correction we have to do. Question number 6. Number 6. ठीक है? In question number 6, part B is not there in your syllabus, so we don't have to do that. But you must do this question as for your practice. ठीक है? तो we'll start with question number A. The question is check whether the fraction is equivalent or not. आपको एक question में दो fractions दी गई हैं. First of all, in question number A, the fraction is 5/9 and 30/54. You have to check whether the given fraction is equivalent or not. ठीक है? तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे. By cross multiplication method, first of all you will write what is n1. n1 यहाँ पे is your 5, d1 is your 9, n2 is your 30 and d2 is your 54. ठीक है? तो these are the values on which you have to find that whether the given fraction is equivalent or not. ठीक है? तो हम लोग क्या करते थे? We have to do the cross multiplication. n1 by d1 is equal to n2 by d2. n1 का multiplication d2 में, d1 का multiplication n1 में. तो n1 into d2, product of the numerator of first fraction into denominator of second fraction, and here we have to do on the other side product of denominator of first fraction into numerator of the second fraction. After writing this relation, you have to just put the values. So n1 is your 5, d2 is your 54, d1 is your 9 and n2 is 30. So 5 4s are 20, 5 5s are 25 plus 2 will give you 5 4s are 20, 5 5s are 25, 26, 10 to 27, 270 and 3 9s are will give you 270. As you can see on both the side the numbers are equal. Here also you have 270, on the other side also you have 270. Since the values are equal on the both sides, we can say that the given two fractions, that is 5/9 and 30/54 are equal. दोनों साइड पे आपको 270 मिल रहा है. ठीक है? Since the numbers are equal on both the sides, so we can say that 5/9 is equivalent to 30/54. ठीक है? तो this is the way how you will solve the question. कोई भी directly n1 d1 ये लगा के करेगा तो I will not give marks. Many of the students who submit their homework in the evening, they do not follow the way I explain the question in the class. ठीक है? सिर्फ जल्दी में एक लाइन में जो क्वेश्चन करोगे मैं उसमें एक लाइन वाले ही मार्क्स दूंगी. So it's better that you follow these steps, then only your marks will be given to you. ठीक है? So this was your question number A. The last part of this question, that is question number 6. Write it down. It is your homework. Exercise 7.3 question number 6 का part C is your homework. Part B you don't have to do. It's not there in your syllabus anymore. ठीक है? तो this was question number 6. Now we'll continue with question number 7. Okay. The question is reduce the following fraction to the simplest form. आपको जो भी fractions given है उसको simplest form में reduce करना है. In this question also part C and part B are not there in your syllabus. ठीक है? So we'll continue with part A. 48/16. This is your fraction. जब हम इस simplest form
में रिड्यूस करना होता है तो हम एक कॉमन फैक्टर देख लेते हैं दोनों नंबर्स का विच आर देयर ऑन द न्यूमरेटर एंड विच इज देयर ऑन द डिनोमिनेटर। जो नंबर न्यूमरेटर पे लिखा है और जो नंबर डिनोमिनेटर पे लिखा है आपको उसका एक कॉमन फैक्टर ढूंढना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द कॉमन फैक्टर। फैक्टर्स ऑफ 48 के फैक्टर्स होंगे 1 2 3 4 5 is not there, 6 is a factor, is 6 a factor, okay, 6 is a 36, 6 is a factor, 7 is not there, 8 is not there, then you have 9 is not there, 10 is not there, 12 is there, 48 is there. ठीक है, these are the factors of 48. Now we'll write the factors of 60. Starting with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 and 60 itself. These are the factors of 48 and 60. Then you have to find the common factors. फिर आपको इसमें से common factors को ढूंढना है। What are the common factors? 1 is there, 2 is there, 3 is there, 4 is there, 6 is there, and you have 12. ठीक है, these are the common factors of 48 and 60. Now last में आपको you have to find the highest common factor. You cannot in this common factors, the highest factors which is common in 48 and 60 is 12. ठीक है, that so you can say that 12 is that number which will be multiplied on both the numerator and the denominator to reduce it in the simplest form. 12 वो नंबर है जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे ताकि हमारी जो फ्रैक्शन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो जाए। ठीक है, you will divide it by 12. Here you will get 4. 12 fourza is 48 and 12 fivesa is 60. तो आपकी जो फ्रैक्शन रिड्यूस होकर सिंपलेस्ट फॉर्म में बनी वो क्या बनी 4/5. तो इन आंसर यू विल राइट द फ्रैक्शन इज 4/5. दिस इज द वे हाउ द क्वेश्चन नीड्स टू बी अटेम्प्टेड. फैक्टर्स निकालने का एक ये तरीका है, एक डिवीजन वाला तरीका है, आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो. द पर्पस इज टू फाइंड द कॉमन फैक्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या जिसको डिवीजन का मेथड सूटेबल लगता है वो उस मेथड से भी फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकता है, और जिसको ये मेथड इजी लगता है वो इस मेथड से भी फाइंड आउट कर सकता है. बट मेक श्योर कि आपका फैक्टर जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो करेक्ट हो, देन ओनली योर फ्रैक्शन विल बी रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म. ठीक है, अब हम अगर ये टेस्ट करना चाहें कि क्या 4/5 ही हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं. अगेन यू विल सी कि हम 4 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे. दोनों का कॉमन फैक्टर जो आएगा हाईएस्ट वो होगा 1. ठीक है, तो इससे ज़्यादा हम इस फ्रैक्शन को रिड्यूस नहीं कर सकते. वी कैन नॉट रिड्यूस द फ्रैक्शन 48/60 फर्दर देन 4/5. कॉपी में मुझे सोल्यूशन एग्जैक्टली ऐसा ही चाहिए. फर्स्ट यू विल राइट द फैक्टर्स ऑफ 48, देन यू विल राइट द फैक्टर्स ऑफ 60, फिर कॉमन फैक्टर्स, देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स. ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग. दोज हु आर confident with the division method they can go for it. The idea is to get the correct common factor. Okay, again I am telling in question number 7 part B and part E are your homework. You will do it yourself and send it to me across WhatsApp in the evening. Okay, now I am reading the question number 8. Ramesh had 20 pencils, Sheelu has 50 pencils and Jamal has 80 pencils. There are 3 persons in the question. First is Ramesh. R is for Ramesh, S is for Sheelu and J is for Jamal. ठीक है, रमेश के पास 20 पेंसिल्स हैं, शीलू के पास 50 पेंसिल्स हैं और जमाल के पास 80 पेंसिल्स हैं. ओके, नाउ आफ्टर 4 months Ramesh used up 10 pencil, Sheelu used up 25 pencil and Jamal used up 40 pencil. 4 महीने के बाद रमेश ने अपनी जो भी 20 पेंसिल्स थी
पेंसिल लिखी है। ठीक है, रमेश ने अपनी कितनी पेंसिल यूज कर ली? 10 पेंसिल्स को यूज कर लिया। और शीनू ने अपनी 25 पेंसिल्स को यूज कर लिया। और जमाल ने अपनी 40 पेंसिल्स को यूज कर लिया। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप? कितनी पेंसिल उन लोगों ने यूज की, हमें इसका फ्रैक्शन बताना है। देन उसके बाद यू हैव then you have to check if each has used up equal fraction of his or her pencil. First of all आपको ये बताना है कि जितनी भी fractions आप used pencil की है वो कितनी है, और तीनों की जो fractions है क्या वो equivalent है कि नहीं। आप लिखोगे कैसे? स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगे? जमाल हैज, or you can simply write pencils with Jamal. ठीक है, I'm writing J, but you have to write, sorry, the full name, Ramesh. ठीक है, 20 pencils used by Ramesh. Pencils used by Ramesh is 10. Then you will write fraction of pencil used. कितनी फ्रैक्शन हुई है? जितनी फ्रैक्शन हमारी पेंसिल यूज हुई है अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेंसिल। तो फ्रैक्शन जितनी पेंसिल जितनी यूज हुई है वो है 10, और टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है? 20। आप इसको रिड्यूस करोगे तो आप इसको देखोगे कि 10 और 20 का कॉमन फैक्टर आएगा 2। सॉरी, 10 और 20 का कॉमन फैक्टर आएगा 10, तो 1/2 ये रिड्यूस होके हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में ऑल्सो अगेन यू हैव टू डू द सेम थिंग। जस्ट अ मिनट। पेंसिल्स विद शीलू, pencils with Sheelu. She had 50 pencils. Pencils used by Sheelu. She used 20 pencils. Then again fractions of pencil used. The fraction will be number of pencil used upon total number of pencil. इसको आप रिड्यूस करोगे तो 1/2 आएगा। 25 और 50 का कॉमन फैक्टर कितना होगा? 25 होगा। ठीक है, और उसको आप रिड्यूस करोगे तो आपकी फ्रैक्शन 1/2 होगी। उसके बाद अगेन यू हैव टू राइट पेंसिल्स यूज्ड बाय जमाल। हु इज दिस? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Okay, pencils used by Jamal. Pencils with Jamal. You will write complete name, don't write just J. 40 and pencil used by him is 20. Fraction कितनी आएगी? 20/40. ठीक है, 20/40। अगेन जब आप मैं पेंसिल की कमाल ओके मैं ठीक है 80/40। बस आई म्यूट योरसेल्फ, आई गॉट द आंसर। 80 और उसने यूज की है 40, तो फ्रैक्शन हो जाएगी 40/80। ठीक है, व्हेन यू विल रिड्यूस इट विल बिकम 1/2। तो इन ऑल द केसेस यू कैन सी दैट फ्रैक्शन, जो रिड्यूस्ड फ्रैक्शन इट इज 1/2 1/2 1/2 इन केस ऑफ Jamal, in case of Sheelu and in case of Ramesh, all of them had the ratio same 1/2 1/2 ही उनकी फ्रैक्शन आ रही है। तो क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा गया है कि तीनों की जो रिड्यूस फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट है। तो इन द आंसर यू विल राइट यस
each has used up an equal fraction of his or her pencil. You will write the statement, yes, each has used up, yes, each has used up an equal fraction of pencil. This is how you will write the question. एक भी statement miss होगी, I will check that copy. All the statements should be there in your copy. Okay. Now the next question is question number 9. In question number 9, you have to match the equivalent fraction and write 2 more for each. क्वेश्चन नंबर 9 में आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को मैच करना है और 2 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लिखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ आप देख सकते हो, आपकी बुक में कुछ जो नंबरिंग की गई है वो 1 2 3 4 5 से की गई है और दूसरे कॉलम की नंबरिंग की गई है A B C D E से। तो आपको यही पहले को मैच करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को देखोगे, ठीक है। पहले तो आप जो भी आपकी बिगर फ्रैक्शन है उसको रिड्यूस करोगे। मैं एक एग्जांपल करके बता रही हूँ, 250 बाय 400, ठीक है। इसको आप रिड्यूस करोगे। HCF फाइंड करना, पहले इट्स बेटर कि आप इसमें डिवीजन वाला मेथड लगाओ HCF फाइंड करने के लिए, ठीक है। मैं इसको डायरेक्टली कर दे रही हूँ। यू विल गेट 5 बाय 8, ठीक है। इसको आपको मैच करना। आप देख सकते हो कि जो दूसरा, पहले तो आप अपनी कॉपी में क्या करना, एक तरफ A कॉलम बनाना, दिस इज योर कॉलम A, है ना। इस तरह से एक कॉलम बनाना, एक कॉलम B बनाना। दोनों में अलग अलग जो नंबरिंग की गई है, एक अल्फाबेटिकल की गई है, एक न्यूमरल वाली की गई है। तो ABCD वाली की गई है और एक 1 2 3 4। तो कॉलम A में आप अपनी A B C D E वाली नंबरिंग कर लेना और कॉलम B में आप 1 2 3 4 5 इस तरह की नंबरिंग करना। फिर आप जो बिगर फ्रैक्शन है उसको रिड्यूस करके आप पता करोगे कि वो आपकी दूसरी साइड में किससे मिल रही। जैसे मैंने एक फ्रैक्शन जो ली है 1 वाली, उसमें 250 बाय 400, 250 बाय 400 उसको मैंने रिड्यूस किया है 5 बाय 8 में, ठीक है। अब जो D है गिवन आपका, वो आपका यू कैन सी इट इज योर बुक दैट इट इज आल्सो 5 बाय 8। तो मेरी ये वाली फ्रैक्शन किससे मैच हो गई, न्यूमरल्स वाली 1 फर्स्ट वाली फ्रैक्शन मेरी पार्ट D वाले फ्रैक्शन से मैच हो गई, ठीक है। अगेन मैं एक और फ्रैक्शन लेके बता रही हूँ, 180 बाय 200। इसको आप रिड्यूस करोगे तो यू विल गेट 9 बाय 10, ठीक है। यू विल गेट 9 बाय 10। E वाला फ्रैक्शन आप देख सकते हो, इट इज रिटन 9 बाय 10। इस तरह से मैचिंग आपको करनी है। बट इस क्वेश्चन में आपके लिए ये टास्क है कि आप रिड्यूस्ड कैसे कर रहे हैं फ्रैक्शन को, क्योंकि हमारे पास अब बिगर नंबर है, 180 बड़ा है, 200 बड़ा है। तो इसको हम अगर फैक्टर्स लिखने बैठेंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। तो इट्स बेटर कि आप इसको ये जो हम डिवीजन मेथड से फैक्टर्स फाइंड करते हैं उस मेथड से फैक्टर्स फाइंड करके सॉल्व करो। तो 2 पार्ट्स मैंने इसके बता दिए हैं। आपके जो बाकी पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स रहते हैं, उसको आप अपने होमवर्क में करोगे, ठीक है। क्वेश्चन को किस तरह से करना है दैट आल्सो आई हैव एक्सप्लेन इट वेरी क्लियरली दैट 2 कॉलम्स आपको बनाने हैं, A और B दोनों में आपको फ्रैक्शन लिखनी है। इसके साथ आपका एक और पार्ट है कि आपको 2 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लिखना है। आपने मैचिंग तो कर दी, अब आपको इसके साथ 2 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है। तो आप 2 नंबर्स से 5 1 बाय 2 बाय इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे भी हमने सीखा निकालना उस तरह से आप निकालोगे। 5 2 ज़ा 10, 8 2 ज़ा 16, ये एक निकाल ली। फिर 5 बाय 8 को 5 बाय 8 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मेक श्योर कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें। 5 3 ज़ा विल गिव यू 50, 8 3 ज़ा विल गिव यू 24। क्वेश्चन में मैचिंग के साथ साथ आपको 2 एक्स्ट्रा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने को भी कहा गया है। तो ये काम भी आपको क्वेश्चन में करना है। पहले तो ये आप कॉलम बनाने के अपना मैच का कॉलम कंप्लीट कर लो, फिर आप ऐसे लिखोगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5 बाय 8, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 9 बाय 8, दो बस आपको फाइंड करनी है। फाइंड कैसे करनी है, एक कोई नंबर ले लो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन विल बी अटेम्प्टेड। With this we have finished our exercise.